Hello everyone, this is your chapter number 7 Employment, Growth, Informalization and Other Issues of Indian Economic Development book. For class 12, this is a part 1 of this chapter by Ms. Divya Saraswat. These are the learning objectives for this chapter and these are the topics which we have to cover in this chapter. First is worker, labor force, workforce, worker population ratio, meaning of employment, types of employment, distribution of employment, growth and changing structure of employment, informalization of Indian workforce, meaning and sources of unemployment and types of unemployment. And in this video we are going to cover only these topics. Rest of the topic we are going to cover in the next video. So let us move ahead. Before proceeding to the chapter, let us discuss that people do variety of work. Some work on farm and some in factories, banks, shops and many other workplaces. At home also. Now, why do we have to need to calculate about the employment and why do we have to discuss about the workers and working ratios? So studying about working people give us insights into quality and nature of employment in our country and also help in understanding and planning our human resource. It helps us to analyze the contribution made by different industries and sector towards the national income. Basically, whatever you are working, whatever you are doing, you are somewhere increasing the production of the country. You are involved in that. You are increasing the GDP and national income as well. So because of this, we have to need to analyze the employment process. So who are worker? The chapter is going to be start from that. Who are workers? So worker are those person which are engaged in economic activities are known as workers. Acha, economic activities for their livelihood. Okay, and what are the economic activities we are talking about? Those activities which somewhere contributing towards the GDP and the national income of the country. Okay, so now number of workers की अगर हम बात करें, in 2011 and 12, India had about 473 million strong workforce, and in which 70% of workers were male and rest were female. In 70% workers were male include child labor. And if we have to discuss about the uh, fraction of women workers in rural areas and urban areas. So in rural areas, women were 1 by 3 and urban is 1 by 5. So somewhere rural areas there is more worker women comparative to urban areas. What could be the reason behind this? If we are discussing this, that there is a participation less of women in urban areas comparative to rural areas. So there is a normal सी चीज़ है that it is common to find that where is man is able to earn high income. ओके एंड अगर हम देखें रूरल की कंपैरेटिव अर्बन एरियाज़ के मैन की सैलरी जॉब होती है, उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा इनकम प्रोवाइड होती है. सो फैमिलीज डिस्करेज फीमेल मेंबर्स from taking up jobs. This is a basic reason which is not appropriate also, but there is somewhere a reason like this. So this narrow definition of work leads to somewhere non-recognition of that. Okay, now next is labor force. What are labor force? Working person प्लस पर्सन हु इज सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क. ठीक है, दोनों में फ़र्क है. एक पर्सन जो काम कर रहा है और दूसरा जो करना चाहता है बट सीकिंग है, मतलब देख रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, ही इज़ अवेलेबल. नाउ उसको दूसरे तरीके से अगर हम निकालेंगे तो टोटल पॉपुलेशन माइनस अनफिट पर्सन माइनस पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क माइनस पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क. तो लेबर फोर्स हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं. एंड व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम कैसे फाइंड करेंगे? सो टोटल लेबर फोर्स अपॉन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. एंड अगर हम लेबर फोर्स की परसेंटेज की बात करें तो मेल्स आर 56% एंड फीमेल्स आर 23% इन्वॉल्व इन दिस लेबर फोर्स. नाउ नेक्स्ट इज वर्क फोर्स. वर्क फोर्स और लेबर फोर्स में थोड़ा सा फर्क है. जैसे कि द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, those who are having work and they are employed.
तो वो वर्क फोर्स होता है। वेयरएज अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो उसमें वो लोग भी आते हैं दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दे आर सीकिंग वर्क बट दे आर नॉट हैविंग वर्क, बेसिकली अनएम्प्लॉयड। सो अनएम्प्लॉयड पर्सन को अगर कभी हमें निकालना पड़ा तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। वन मोर थिंग, लेबर फोर्स में वो लोग भी आते हैं दोज हु आर इल, दोज हु आर नॉट गोइंग टू वर्क ड्यू टू देयर इलनेस, सो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकालेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। नाउ worker population ratio basically is used to analyze the employment situation in the country. जितना हायर होगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करेगा, ठीक है। हायर रेशियो इंडिकेट्स हायर पॉपुलेशन इज इंडिकेटेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, वर्कर पॉपुलेशन का अगर हम यहाँ एनालिसिस करें इस टेबल के थ्रू, सो देयर मैन एंड वुमेन के अकॉर्डिंग रूरल एंड अर्बन एरिया, सो वर्कर पॉपुलेशन में इन रूरल एरियाज मैन 54.3 एंड अर्बन में 54.6, ऑलमोस्ट बराबर ही है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन हेयर, सो विमेन में रूरल एरियाज में 24.8 है, वेयर एज अर्बन में कितना है 14.7। तो अर्बन में विमेन का पार्टिसिपेशन इन दैट एरिया इज लेस कंपेरेटिव टू रूरल एरियाज। ओके, सो बेसिकली अगर हम ये भी देखें तो रूरल एरियाज़ में विमेन को इसलिए भी काम करना पड़ता है बिकॉज दे हैव टू अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड, उन्हें अपना 2 या 3 टाइम के मील्स के लिए देखना होता है। ओके, तो रूरल एरियाज़ में मोस्टली वुमेन जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं वर्क फोर्स में। Next topic is employment. What does employment mean? Employment, it is a situation in which a person goes for work for a fixed period of time for a particular and gets salary in return. बेसिक सी चीज़ है कि what is employment. Now, employment में भी ना 2 तरह की employments होती है। एक वो जो सेल्फ करता है, जिसको किसी के सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड इज वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ मूव अहेड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट्स को अगर हम 2 तरीके से देखें तो एक तो वो होते हैं जो कैजुअल वेज लेबर्स होते हैं और एक वो होते हैं जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देयर इज अ पिक्चर विच डिस्क्राइब अ कैजुअल वर्कर। ओके, सो व्हाट आर सेल्फ एम्प्लॉयड? Self-employed basically those worker who uses own resources to make a living, उनका अपना अलग सेटअप होता है। और if we are talking about the workforce which involve in self-employment is 52% workforce. Employed in self-employed process there are 52% of workforce. In case of self-employment, a person make use of his own land, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहा है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें ही अपनी लेगा। इनमें एग्जांपल्स क्या क्या आ सकते हैं? कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, इवन द कॉबलर ऑल्सो ही इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वेज एम्प्लॉयमेंट की मैंने बोला 2 टाइप्स हैं। वन इज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड एंड अनदर वन इज कैजुअल वेज लेबरर्स। वेज एम्प्लॉयमेंट बेसिकली अ वर्कर सेल्स इज लेबर, ठीक है, एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न। वो अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं सेल कर रहा है और उसके बदले में वो वेजेस ले रहा है इन रिटर्न। वेज एम्प्लॉयमेंट जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप का है। तो फर्स्ट वन इज़ योर रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड। इसका मतलब जैसा वो बोल रहा है एक प्रॉपर वेज मिलता है रेगुलर बेसिस पे, हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस। दे ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे PPF है। एंड हाउ मैनी people workforce are involved in this? 18% workforce are involved in this. And if we are talking about casual worker, people who are casually engaged and not hired on permanent basis, मतलब जब काम मिल रहा है then they are there, they are getting wage for that, but they do not get social security benefit. इनको कोई भी social security benefits नहीं मिलता, PPF account ये सब कुछ नहीं होता इनका। And 30% are involved in this. Okay, as you can see in the picture also, that brick making a form of a casual work, मतलब it's not like regular salaried job. Now come to next, distribution of employment अगर हम करें तो हम किस तरीके से करते हैं? 3 तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन,
रूरल एंड अर्बन, एंड लास्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स जो हमारे होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। ओके, जेंडर में क्या क्या चीज़ें आती है, मेल एंड फीमेल, फाइन। सो देयर आर 3 कैटेगरीज, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड पर्सन एंड कैजुअल वेज वर्कर। अगर हम मेल की बात करें तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे वो मैक्सिमम जो है वो है जो कि आपके सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट वन। और अगर मैं लोएस्ट वन की बात करूं तो लोएस्ट है रेगुलर सैलरीड वर्कर, ठीक है। हाईएस्ट इज 51% सेल्फ एम्प्लॉयड एंड 20% इज योर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। एंड अगर मैं बात करूं कैजुअल वेज रेट, देयर आर 29% of that. If we are talking about females, so again females are also like the same, 56% जितनी होती हैं फीमेल्स उसका 56% सेल्फ होते हैं। एंड सैलरीड की बात करें, सैलरीड ऑल्सो 13% एंड कैजुअल वर्कर्स इज 31। दीज आर सेम, मतलब दोनों में ही, मेल में भी फीमेल में भी, हाईएस्ट जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड लोएस्ट जो है वो है सैलरीड। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयड बाय रीजन, रूरल एंड अर्बन। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में 42% जो होते हैं अर्बन एरियाज में, 42% जो हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ 43% एंड रेस्ट इज़ योर कैजुअल वर्कर। ये अर्बन एरियाज़ की बात है। यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखना, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर ही है। देर इज अ रीजन फॉर दैट, व्हाट, दे आर गेटिंग मोर एजुकेशन, दे आर मोर स्किल्ड कंपैरेटिव टू दैट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में मोस्टली इक्वल ही है। नाउ कम टू द रूरल वन। रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, सेल्फ एम्प्लॉयड आर 56 एंड रेगुलर सैलरी बहुत कम है 9% एंड कैजुअल वेज आर 35%. So you very well get to know about this, why there is less regular salaried person due to the education and skills and the opportunities they are having. Okay, now last one is your distribution of employment in different sectors. Primary में हमारा agriculture and mining आया, there are 48.9% people are involved in that. Secondary is manufacturing, electrical, gas and water supply, construction, इसमें 24.3%. and tertiary trade, transport, स्टोरेज सर्विसेज। अब अगेन एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली है, हम आज भी अगर इसमें भी देखें हम, मैक्सिमम वर्क फोर्स इज इन्वॉल्व इन विच सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। एंड समवेयर सेकेंडरी हमारा थोड़ा सा कम है एंड टर्शरी उसके कंपैरेटिव ज़्यादा है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के थ्रू अगर हम देखें, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बट रूरल एंड अर्बन, मैन एंड वुमेन। प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरियाज़ में 64.1% है, वेयर एज अर्बन में 6.7 है, बिल्कुल ऑपोजिट है। जेन्युइन सी चीज़ है, रूरल एरिया वालों की मेन ऑक्यूपेशन ही ये होती है, वेयर एज अर्बन वालों की नहीं होती है, अर्बन सेकेंडरी या टर्शरी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम मैन और विमेन की बात करें तो विमेन ज़्यादा हैं एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में कंपैरेटिव टू मैन। ओके, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, कि रूरल एरियाज़ में विमेन ज़्यादा वर्क करती हैं। ओके, कंपैरेटिव टू अर्बन वन। एंड वुमेन का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम किस में आ रहा है, आप देखोगे अपने आप यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व करो, विमेन का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम आ रहा है इन प्राइमरी सेक्टर। नाउ सेकेंडरी में बात करें तो सेकेंडरी रूरल में 20.4, अर्बन इज 35.0, मैन 25.9 एंड वीमेन 20.0। टर्शरी 15.5, 58.3, ये हाईएस्ट है अर्बन का, 58.3, दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द लोएस्ट। अगर मैं इसमें बात करूं, दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द लोएस्ट, पिक्चर बिल्कुल ऑपोजिट है इसमें। ओके, नाउ मैन एंड वुमेन की अगर हम बात करें हाईएस्ट एंड लोएस्ट के लिए, विमेन हाईएस्ट इन्वॉल्व इन primary sector and lowest in tertiary one, and whereas men highest in primary one and lowest in secondary sector. Okay, so this is according to workforce by industry. Now growth and changing structure of employment. growth को ना दो तरीकों से देखा गया है।
जैसे कि अगर हम एनालाइज करें इन 1990s की, अगर हम बात करें 1990s, अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं चैप्टर नंबर 3 पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आ रहे हैं हम। यहाँ पे 1990s में लेट 1990s की बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइन बिकॉज हम लोग नए प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, न्यू पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रहे थे। रीच द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट द इंडिया हैज़ द अर्ली स्टेज ऑफ प्लानिंग. During these years, we also have a widening gap between the growth of GDP and employment. ग्रोथ और जीडीपी के बीच, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था। सपोज दिस इज योर जीडीपी एंड दिस इज एम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ा गैप आ गया था। दिस मीन्स दैट द इंडिया इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ था लेकिन हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया विदाउट जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ को क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। ये ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ये जॉब के बिना हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।